What's up, everyone? This is Ravia, and welcome back to the Brown Girl Rants. First of all, मुझे ना ये एपिसोड स्टार्ट करनी चाहिए वो जो बू वाला म्यूजिक नहीं होता उसे let me insert that sound for me. Now, you all would be like, Ravia, why? You all would not be like that. You would like, Ravia, you deserve that. But I am aware and very embarrassed of the fact that I missed so many weeks in between. I'll explain everything. Like buckle up. It's gonna be an insane, not insane. मतलब मेरे साथ कोई छोटी चीज भी हो जाए तो मैं कहती हूँ insane हो गया. मतलब it's not that insane, but it is maybe a fun story. So, or maybe you guys are interested to know, okay, Rafia, what happened? Where were you? क्या सीन है तो let me explain all of it. So first of all, how are you guys doing? I am doing really well. How's the winter going? We are really into the winter. और पिछले एक साल में कितना कितना अरसा हो गया मेरे पॉडकास्ट इट वुड बी 2 years since I started the podcast. तो पिछले 2 साल से जब भी विंटर आता है तो आई एम लाइक अ लिटिल लाइक very excited. I make a special episode about winters and everything. इस बार वो सब कुछ नहीं हुआ. अगर मेरी ऑडियो क्वालिटी इज़ बैड तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसकी वज़ाहत बाद में दूँगी. लेकिन विंटर इज़ हियर. आई एक्चुअली आई डोंट हेट इट. आई एम रियली एन्जॉयिंग विंटर्स. हालाँकि मैं बहुत मिज़रेबल हो जाती हूँ विंटर्स में कि ओह माय गॉड आई डोंट लाइक इट. आई वेट फॉर विंटर्स एंड देन व्हेन द विंटर कम आई एम लाइक आई एम सो लेज़ी आई डोंट लाइक इट. लेकिन इस बार अभी तक आई एम नॉट. बट ऑल्सो दिसंबर की सर्दी इज़ एन्जॉयबल. जनवरी की सर्दी इज़ ब्रूटल. मैं गर्मी बोलने लगी थी. तो जनवरी की गर्मी जनवरी की सर्दी देखते हैं किस तरह की होती है. सो फार सो गुड. अब ऑल्सो द अदर थिंग इज़ दैट कि मैं पिछले 2 साल से सिंस आई वाज़ वर्किंग रिमोटली पिछले 2 साल से तो आई वाज़ जस्ट लाइक नॉट फीलिंग इट. मैं रोज़ वही स्वेट पैंट्स और हुडी में फिरती थी एंड इट वाज़ चिल, इट वाज़ नाइस. लेकिन दिस सर्दियाँ आई एम गेटिंग टू ड्रेस अप लाइक आई एम वेयरिंग स्वेटर और उसके नीचे कॉलर शर्ट लाइक आई एम वेयरिंग द एस्थेटिक्स जो मैं पहनना चाहती थी. तो इस वजह से इट्स ऑल्सो नाइस लाइक आई एम ड्रेसिंग अप एवरी सिंगल डे एंड इट्स बीन सो गुड एंड आई एन्जॉय इट सो मच. आई रिकॉर्ड अ लिटिल वीडियो एवरी सिंगल डे. I dress up for the office, but I am not able to post that. And वो भी मैं बाद में वजह दूँगी कि I'll explain later कि why I am not able to post that. क्योंकि you have to listen to this whole like journey, everything that happened ताकि मैं उस conclusion नहीं ताकि मैं उस plot twist तक पहुँच सकूँ, वरना मज़ा नहीं आना. Okay, so here is what happened while I was away. First of all, I had my cousin's wedding, which was in Faisalabad. I think I mentioned that pehle bhi. So it was her wedding, or this happened like a month ago. ठीक है? So I was at her. So we went to her wedding. Then we had a huge guest come over. Huge guest over. That does that even make sense? We had a guest come over. Like there were a lot of people who came from abroad. ऑब्वियसली उस सब में इतना बिज़ी थे, फिर ऑफ़िस एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली मुझे उस सब का होश नहीं था. आई वाज़ रियली टायर्ड एंड उसके बाद नाउ दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ डाइंग टू शेयर बट आई कुडन्ट शेयर क्योंकि आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड I don't want to jinx anything. I want that to happen because I was just so excited for my friend. So my friend got married, a very, very, very close friends. I think close friend. I think this is like my first like a lot of my friends got married. Like and this is like the first time my closest friend got married, and she was from Multan actually. तो उसकी बारात was in Multan. तो अब ये भी पूरी फ़िल्म चली. I really wanted to go to her wedding और when she asked me कि Ravia, I'm gonna get married obviously, and I was really excited. माशाल्लाह, first of all माशाल्लाह, I'm so happy for her और अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे. लेकिन she was like कि I'm getting married, would you come? And I was like of course I would come. Like ये भी कोई पूछने वाली बात है क्योंकि in my head I was like of course my parents would agree. They cannot not agree to this cause like it's my friend. But my parents did not. Plot twist.
सो दे वर लाइक नो, आउट ऑफ सिटी, मुल्तान इतना दूर, और ऑब्वियसली मेरे बाकी दोस्तों का भी उतना नहीं बन पा रहा था प्लान जाने का, तो आई कुड नॉट गो अलोन, इट वाज जस्ट मी एंड माय अदर फ्रेंड। सो एंड पे मैंने मतलब कि आई ट्राइड कन्विंसिंग माय पेरेंट्स, लाइक I did a lot. But end पे आके it could not happen. So unfortunately, I did not go to her wedding barat, and it was so sad. और मैं पूरा वो हफ्ता मैं दुखी रही हूँ. But then her walima was on Sunday. So my guests went back, और उसी संडे उसका वलीमा था, और उसी संडे मेरी दोस्त के भाई का भी वलीमा था। सो आई अटेंडेड 2 वलीमास ऑन दैट संडे। ओके, दिस वाज़ लास्ट से लास्ट संडे। उसके बाद क्या हुआ कि देन ऑब्वियसली संडे था, अगले दिन मंडे था, तो वो ही वर्क लाइफ। तो फिर मैं गई ऑफिस, बट देन वेडनेसडे को it was my office's annual dinner, and I posted a lot of like uska content on story, so you guys would know. ठीक है, if you guys follow me on Instagram. If you don't, follow me on Instagram. Anyways, also someone who is here to for the actual topic, please skip all of this story. Like पता नहीं मैं कितने time बोलती रहूँ, मतलब कि प्लीज प्लीज जस्ट स्किप इट। प्लीज जस्ट आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन कि कब तक जो है वो, कब जो है मैं टॉपिक के बारे में, एक्चुअल टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट करूँगी, और वो मेरे लिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि कोई यहाँ पे मेरी बकवास सुनने तो आया नहीं है। ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू लिसन टू द टॉपिक। सो आई विल टॉक अबाउट दैट टॉपिक व्हिच आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, लेकिन पहले मुझे अपनी आबिती सुनाने दें क्योंकि देयर इज़ जस्ट नो वे आई कैन talk to you guys other than this podcast. Okay. So what happened? So I went to those two वलीमा, फिर मैं आई, obviously अगले दिन ऑफिस था, तो I went to office, but उससे अगले दिन मेरा जो है वो एनुअल डिनर था। तो फिर I was really excited for that, and it was so much fun. I attended concert for like first time in years. I never attended concerts आउट ऑफ माय स्कूल और कॉलेज, और वो भी एक-एक बारियों में। सो आई जस्ट अटेंडेड 2 कॉन्सर्ट्स इन टोटल, ये थर्ड था, एंड दिस वाज़ लाइक द मोस्ट फन आई एवर हैड, इट वाज़ सो फन। और उसके बाद वी हैड एन एनुअल डिनर, इट वाज़ सो फन। आई वेंट बैक थर्सडे, आई मेट माय फ्रेंड्स, एंड इट वाज़ सो मच फन इन लंच टाइम। तो आई डिडन्ट गेट अ लॉट ऑफ टाइम, सो बेसिकली मेरे जो आई हैव 3 फ्रेंड सर्कल्स, और उनमें से जो एक फ्रेंड सर्कल है वो सिर्फ वीकडेज़ में मिल सकते हैं क्योंकि दे आर स्टिल इन यूनिवर्सिटी। तो वो जब भी आते हैं मेरे ऑफिस के पास, तो आई कैन जस्ट मीट देम फॉर एन आवर, लाइक इससे ज़्यादा मैं नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी लंच ब्रेक ही उसी टाइम पे होती है। सो आई जस्ट वेंट देयर फॉर माय लंच ब्रेक, आई मेट देम, और इट वाज़ लाइक फॉर 20 मिनट्स, सो इट वाज़न्ट अ लॉट, लेकिन दैट मेड मी हैप्पी। ओके, सो ऑन फ्राइडे our whole team in office went out for a lunch. It was so amazing, so good. So I was just having a lot of fun, like you can tell I was having a very happening life. But on that Friday, I was really just excited to go back home and spend the whole weekend by myself क्योंकि it was just the first weekend जहाँ पे मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे किसी शादी पे नहीं जाना, and I'm gonna sleep in till like I decided कि I'm gonna sleep in till 2, and I'm gonna do nothing, I'm gonna bake, and I'm gonna live a nice like just enjoyable life, I'm gonna watch YouTube and movie और वो सब कुछ, मतलब full chill मारना है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, एंड आई वाज़ ऑल्सो रियली हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि पिछला कुछ अरसा आई वाज़ जस्ट नॉट फीलिंग दैट वेल, मतलब थोड़ा-थोड़ा आई वाज़ फीलिंग एंग्शियस, तो इट वाज़ लाइक द फर्स्ट वीकेंड वेयर आई जस्ट डिड नॉट फील एनीथिंग। आई वाज़ फीलिंग वेरी फ्री एंड जस्ट एवरीथिंग एल्स, मतलब एवरीथिंग गुड। तो ना आई वाज़ टेलिंग माय मॉम आई फील सो गुड एंड इट्स जस्ट सो फन, मतलब इतना मज़ा आ रहा है, और दिस वीकेंड इज़ सो नाइस एंड आई एन्जॉय दैट सो मच। सैटरडे को आई हैड सो मच फन, आई पोस्टेड मुझे वीकेंड पे ये भी होता है कि आई एम गोना पोस्ट अ लॉट ऑफ ऑन माय इंस्टाग्राम, और व्हिच आई डिड, आई पोस्टेड अ लॉट, ये वो। अब रात को ना, सैटरडे की रात को मैंने अपनी बहन को कहा, "इकरा लेट्स डू स्किन केयर टुगेदर।" आई वाज़ लाइक, "लेट मी शो यू माय स्किन केयर, यू विल डू द सेम। Let's do it. And while we are doing it, let me record it because it will be entertaining and I'll like post it somewhere. So post it on my like close friends वगैरह. So it will be funny. Like let's make a funny like video type see doing skincare. अब मैंने वो ऐसे बाथरूम में, क्योंकि हम बाथरूम में स्किन केयर ऑब्वियसली कर रहे हैं, तो आई ब्रॉट माई ट्राइपॉड स्पेशली, और मैंने अपना फ़ोन रखा है, और वी आर डूइंग इट, एकदम से फ़ोन गॉट स्टक। फ़ोन नहीं, मेरा फ़ोन, माय फ़ोन गॉट स्टक।
और जो है ना, आई वाज़ लाइक व्हाट हैपेंड? और मैंने कहा चलो रीस्टार्ट करते हैं, हो जाता है, खैर है। मैंने रीस्टार्ट किया तो द बैटरी वाज़ लाइक 1% एंड आई रश्ड एंड पुट इट ऑन चार्जिंग, लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा था। तो मोबाइल फिर बंद हो गया और फिर शुरू हुआ और चार्ज भी नहीं हो रहा। फिर आई वेंट इनटू द सेटिंग्स और वो यही हो जा रहा था कि हर 1 मिनट बाद फ़ोन बंद हो जाता। आई वेंट इनटू द सेटिंग्स, देयर वाज़ जस्ट दिस मसला, तो basically my phone died. Not really died, but it's not working. It stopped working. And I was like, "Oh my god, that sucks." I messaged my brother who is not in Pakistan, or as I told you all, he moved out of this country. So I messaged him and he was the one who got me this phone. So I messaged him कि ये मसला हुआ है. And I was like, "Oh my god, that sucks." And then I slept in और उस वक़्त देर ज मुझे दुःख था, आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड व्हाट विल हैपन? सो आई पिछले ना 4-5 महीने से आई एम ट्राइंग टू गेट अ न्यू फ़ोन, आई एम ट्राइंग टू सेल दिस फ़ोन एंड गेट अ न्यू फ़ोन। लेकिन आई आल्सो प्रोक्रेस्टिनेट, आई आल्सो डोंट नो व्हाट टू डू। आई हेट पाकिस्तान की फ़ोन मार्केट, क्योंकि जो मार्केट ऐसी होती है, उनमें लड़कियाँ बहुत कम होती हैं और लड़कियों को चूना भी लग जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ स्कैम हो। और मैं किसी ऐसे इंसान को भी नहीं जानती जो मुझे उस स्कैम से बचा सके, जिसको मैं कह सकूँ कि मेरे साथ चलो, ठीक है? तो मैं इस वज़ह से नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है इस फ़ोन, और मैंने सोचा था कि जनवरी में आई विल चेंज। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो इसका टाइम आ गया था और जो है ना, आई विल चेंज माय फ़ोन। बट फिर उसकी वज़ह से I am not able to use my phone. So I haven't like, so I don't have my phone. It's been a week. I don't have my phone and I am just living my life like that. I was really calm क्योंकि पहले जब when I was like 20, when I was in my university, phone was like a big deal for me. It still is, लेकिन I have my laptop. I have my WhatsApp on laptop. I can use Instagram, Twitter, everything entertainment wise I can use on laptop. I cannot post anything which sucks क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोस्ट करना है. So I cannot communicate to anyone through my Instagram stories, which suck. Now here's the thing. I want to get a new phone. It's not that easy. First of all, I'm waiting for my salary. Okay, and secondly, I don't even know कि उसके बाद भी I can get it or not. First of all, मुझे इस फ़ोन में बहुत लॉस हुआ है. I like saved money to get an Apple iPhone क्योंकि I really wanted to get it क्योंकि I like the quality of it, or even with like recording. I have been recording my podcast since the past 1.5 year on my iPhone क्योंकि उसका माइक्रोफ़ोन इतना अच्छा है. अब मैं अपने लैपटॉप पे फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ द वे आई यूज्ड टू इन द इनिशियल एपिसोड्स, लाइक पिछले से पिछले साल. सो ओल्ड टाइम्स मतलब, और आई डोंट नो हाउ द ऑडियो विल टर्न आउट. आई लव टेकिंग पिक्चर्स, आई लव पोस्टिंग इट, मतलब कि ऑल ऑफ दैट. लेकिन मुझे उस फ़ोन का बहुत लॉस हुआ क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत गिर गई क्योंकि जब नया फ़ोन आया तो फिर वो सारी वैल्यू गिर गई, व्हाटएवर. तो इस वजह से आई हैव टू like put in a lot of money to get a new phone. I still cannot get a new phone. I have to get a second hand phone. And then I am getting into this rabbit hole, rabbit hole. Lekin I don't care क्योंकि I have to tell it to someone. Like it's not been, I thought कि I'm gonna yap for like 30 minutes. Like it's been 13 minutes, so I can yap a little bit more and then we can move to an actual topic. So still want to get an iPhone, of course. और एवरीवन, और मुझे आई अंडरस्टैंड कि मी सेइंग दिस साउंड्स लाइक कि आई एम लाइक आई वांट इट फॉर लाइक सम स्टेटस और सम लाइक approval from this society, but that's not the case. I genuinely really like the picture quality of the Apple phone as compared to an Android phone. Like I don't know how to explain it, but it's just it and I want it. I love the experience of using it and I want to take nice pictures. Yes, मुझे पता है कि a lot of people are like कि फ़ोन that's a luxury और फ़ोन सिर्फ बात होनी चाहिए, जो कि मेरे फ़ोन से नहीं होती थी since it was not PT approved. But for me it's very important क्योंकि taking nice pictures and posting cute reels really makes me happy. Let me do it. I don't think it's a big deal. Like, and everyone, including my brother, everyone in my family, including my brother, is like against this idea. क्योंकि I am not that good in, but with Apple iPhone, with getting second-hand Apple iPhone, you need to be like very like smart about it. You need to know all the things. My brother is there. मुझे इस फ़ोन में ऑलरेडी स्कैम हो चुका है क्योंकि व्हेन आई गेट इट, इट वाज़ कंप्लीटली फाइन. फिर 1-2 महीने बाद इसमें मसले आना शुरू हो गए. पता नहीं अंदर क्या था.
तो फिर उसने कहा है कि नहीं, गेट एन एंड्रॉइड बट गेट अ न्यू फ़ोन, लाइक ब्रांड न्यू फ़ोन। इफ यू कैन अफोर्ड अ ब्रांड न्यू आईफ़ोन देन गेट इट। आई कांट। और आईफ़ोन का ये भी है कि आई थिंक कि 14 के बाद के मॉडल्स जो हैं यू कैन गेट ब्रांड न्यू व्हिच इज़ लाइक a lot of money that I'm not willing to spend right now on a phone. So they all are convincing me to get Android. I want to get an iPhone, but also I have no one. I could like I personally don't have a lot of knowledge to get a good iPhone, or I have no one who could like help me in this whole buying and selling process. अभी तो मुझे बस ये है कि जो मेरा पुराना फ़ोन है वो बिक जाए, और एवरीवन प्लीज़ प्रे, मतलब please everyone like के जो है it could like sell in a little bit good amount, ताकि I ताकि मेरा कम से कम ऊपर पैसा लगे नया फ़ोन लेने में। लेकिन this is what happened, I was calm, अब मैं इसका भी बताती हूँ। So first of all I've been working from home since this whole week, और वो इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सर्दी है या फिर हॉलिडेज़ हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। There's so much workload कि we were asked to do work from home because we have to overtime, and working overtime in office क्योंकि our office is a bit far away from my home. So we're like, take work from home, but you have to work overtime because it's a lot of work. And I knew क्योंकि it's the month and year end कि this week's gonna be really 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 busy. तो आई न्यू कि काम तो बहुत ज़्यादा होना है, तो आई डोंट आई मुझे इतनी कोई ख़ास ना फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी उस तरह कैलकुलेटर के अलावा। आई रियली मिस्ड हैविंग कैलकुलेटर इन माय फ़ोन। लैपटॉप का कैलकुलेटर सक्स, लेकिन ख़ैर उसके अलावा इट्स सो मच वर्क कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं फ़ोन खोल के देख सकूँ। और जो मेरे फ़ोन में था वो अगेन मेरे लैपटॉप में भी है, और जो है इट्स जस्ट द ओनली थिंग आई एम नॉट एबल टू पोस्ट एंड टेक पिक्चर्स। आई वेंट टू अ क्यूट कैफे द अदर डे, आई कुड नॉट टेक पिक्चर्स of it, and that thing killed me. Then the other day I looked really good, I could not take pictures of myself, so I only want a phone to take pictures, so obviously I want a phone जिसमें अच्छी pictures हो। मैं कैसे समझाऊँ? I don't want to get something really against everything everyone's wish, क्योंकि जब भी मैं कोई अपनी मर्ज़ी करके चीज़ लेती हूँ ना, मुझे बाद में रिग्रेट होता है। तो I don't know why everyone cannot agree with me. I don't know how to explain it. Maybe I am just a victim of capitalization and consumerism, लेकिन लेट मी लाइक मेरी एक ही ख्वाहिश है, मतलब आई डोंट नो मैं आप लोगों की मिन्नतें क्यों कर रही हूँ, यू गाइस विल बी लाइक ब्रो गेट इट, लाइक व्हाई आर यू क्राइंग। बट एनीवेज अभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक मेरी सैलरी नहीं आएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो उससे ये भी नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि आई एम जस्ट रियली जस्ट लाइक इन द ब्रोकेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ राइट नाउ। आई वाज सो हैप्पी कि आई गॉट वर्क फ्रॉम होम। कैन आई शेयर ऑल ऑफ दिस? आई एम गोना बी वनरेबल, ओके? ठीक है। व्हेन वी गॉट आई थिंक कि वही बात है, जब व्हेनेवर सैलरी कम्स आई स्पेंड सो मच इन लाइक द फर्स्ट 2 वीक्स के अगले 3 हफ्ते मेरे लिए आई जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट 3 वीक्स। So I was so happy when I got work from home. Okay, I was like, oh my god, I'm gonna spend like I'm gonna save all the like rent or आने जाने का खर्चा, and I'm gonna order something every single night. Like, and that is not happening. I'm just like I'm just surviving and going through it. Or I just और वही बात है कि when I'm getting a phone and I'm gonna add up the money, तो obviously फिर मेरे इतने रख जाने हैं कि मेरा जनवरी के भी लास्ट 3 वीक्स जो हैं वो ऐसे ही मार के गुजरने हैं। Very excited for that, लेकिन at least I'll have my phone. But इस सब के बावजूद भी और सो हाँ, अब ये बात है। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम 30 मिनट्स की गैप हो ही जानी है। लेकिन एनीवेज़ आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम, तो उस वजह से I literally have been non-stop working. Like it's been insane. Like it feels like I'm in this like work marathon कि जितना काम हो सकता है करो. Like every second I am working, I work, I like shut my laptop down when I before going to sleep, and then I wake up and then I open my laptop again. मतलब मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, बीच में बस I take breakfast break, dinner break, and नमाज की break. It's been insane. Or I know my family hates me. Like they literally hate my existence. Because they never hated me like that when I came to office. Like and now they see me sitting working. I don't know why. Maybe it's annoying.
लेकिन दे लिटरली दे आर लाइक कि इसका क्या मसला है? क्योंकि इट फील्स मतलब कि इट जेन्युइनली फील्स लाइक द वे समवन वुड कुड गेट अनॉयड सीइंग समवन लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स. हालाँकि आई एम वर्किंग एंड इट्स अ सीरियस वर्क एंड आई एम गोना गेट पेड फॉर दैट. But I know कि it's annoying for them to see me working overtime every single day. And it's been insane. और अभी भी I have to literally physically like pull myself out of my working chair and record this podcast because I really wanted to get the podcast up this Friday because that's the only way I can talk to you guys and I just wanted to yap a lot. So that's what's happening. But I'm really excited for this weekend. Hopefully, I don't have to work. Hopefully, my phone will be sold. Hopefully, Monday तक my salary will come. Hopefully, and hopefully, maybe, hopefully, next episode तक I might have my new phone. वैसे लगता तो नहीं है. मुझे लगता है 1-2 महीने लग जाते हैं. Good thing is कि मैं मतलब कि you be like Rabia, how are you calling? I have another phone. It's like a little Samsung phone. बिल्कुल छोटा सा उससे कॉल हो जाती है. So yeah, तो मतलब कॉल वाला फ़ोन मेरे पास है और मुझे कोई कॉल करता भी नहीं है. Like नो वन केयर्स. तो इस वजह से वो है तो ऑब्वियसली मेरा गुज़ारा तो हो जाएगा बिकॉज़ आई हैव माय लैपटॉप एंड ऑल. बट लेट्स सी मतलब let's see how much time it takes for me to get a phone. Like it would be really interesting. लेकिन obviously I'll keep you guys posted on this podcast. जिसने मेरी स्टोरी लगी उस दिन मैं स्टोरी भी बता दूंगी कि I got a new phone. But this is what's happening. This is the update. If anyone have any recommendation or just a comment or anything, please message me on Instagram. You would be like, "Rabia, how will you use your Instagram?" I use Instagram on my laptop, or I cannot post anything. Like, and obviously, I can message and message back. So, if anyone have any recommendation, if anyone is an expert on phones or they have a thing or two to tell me, please help a girl out. Please. So that's what's happening. So I need desperate help and advice. Or even if you just have want to comment on something, let me know. I would love to talk. लेकिन बहुत annoying हो गया और जो है thank you so much for listening to my yap. Let's just go to the actual topic. Okay, so do you guys know this like YouTube channel, The Rebel Kid? It's an Indian girl and she posts these like story times. She posted 3 story times and they're so funny. I literally wait for her to post a like long video like that so that I can listen to it while working and it's so funny. And I wish I could narrate a story in that way. Everyone could be that hooked to it and enjoy it that much. But mine is kind of boring. I think I just do not have the narration skills. I am more good in saying things that I'm about to say now. So, on that note, our today's topic is I am really excited for this topic, but the OG people, those who listen, would know that I have talked about this a lot in like almost every video I make that is about social interaction, whether it's your friends or random people or how you feel around people. Like whenever I talk about social interaction, I do mention this thing, but I wanted to make a whole different video. I was about to say video, a whole different episode on it because I remember telling this to one of my friends like a week ago and I told this like her like 5 times and I was like, okay, I need to make an episode on that. And the topic is you can already tell because it's on the title, but let me say it out aloud. Give back the energy you get. Now, I don't know if you guys get what I mean to say or not, but I'll explain everything. I'll explain every single thing. Don't worry. Sit back. Don't take notes. It's not that I am not gonna say anything good. No, I'm gonna say a lot of good things, but not anything that you need to take notes of. But like, I hope that it has this impact on you, or you enjoy it, or at least you agree with it. And if you disagree with it, I hope that you let me know so that I can correct myself if I'm wrong. But disagreements are okay. But anyways, so this is the thing, giving back people the energy they give you is something that is my key to living a happy, not a happy like
not just this thing, it's not a key for my happy life, but like a happy I am happy with the way my friend circle is, and I'm happy the way the friendships I have right now. I think I'm in a good place with friendships, and the amount of time I spend with my friends, even though I have graduated. And obviously after you graduate, it's just not the same. I'm sorry, like it's the bitter reality. And it's been 2 years, so I can say it like in someone who's about to graduate. I know you don't want to hear it. It's gonna be fine, you'll have fun. It is the same, like it can stay the same, don't worry. मैं खुद ही पहले बात की और खुद ही मुँह कर गई हूँ. But the thing is कि this is something I think कि I realized this thing like 5 years ago, and it's been a game changer for me. I am very like happy and secure with my friendships, and in even interacting to random people. And I think this thing is the key factor to that. I just give people back the energy they give me whenever I meet people or I am in any sort of relationship with that person, even if they're just my acquaintance. What's that word? Whatever. Or they're whatever it is. Maybe we travel together, maybe we are working together, maybe we study together, and we are developing this close bond. But at the same time, we don't know yet, because obviously मुझे लगता है कि friendship आपको पता तभी चलता है when you guys are not together, and you see कि okay, was is this friendship meant to be in the future or not. And it's okay if something is just for that time. मतलब obviously when I was in university, I had a lot of people that I am not in contact with now, which does not mean that they were not my true friends and that they were not my true friend and they were just a companion. But that means that they were just important to me in that part of life, and I still value and appreciate that they made me go through this era of my life. ठीक है? So I don't think कि it means कि मुझे कहना चाहिए oh my god, that friendship was not meant to be. Whatever, they were there when you needed them that time. It's okay if it did not work out the way it would have ideally when you guys were went on separate ways. So that's okay. Lekin, whenever you are new somewhere, or you are unsure of that friendship, or it's just not like it's in its developing phrases, it's in its developing stage, or you just met someone, and or you just want to make new friends, or you are just like doubting about, there's a lot of people who doubt about the friendships they have. They're like, okay, I value this person a lot, and whenever they text me, I reply to them in 2 seconds. Do they value me the same way? Cause I am the person who always makes plan. I am the person who always text. They are not putting that much effort from their side. So maybe, do they value me? Do they don't value me? Or if I meet someone new and I really want that person to be my friend, so if I am the only person who is putting that effort, and do they want to talk to me and be my friend the same way, the way I want, or am I the person who is forcing this whole thing? तो इस सब के बारे में मैं आज बात करूंगी. So I would talk to a lot of people who would be like कि I am doing this in my friendship, I am doing this in my friendship, और मुझे वैसी चीज़ वापस रिटर्न में नहीं मिलती, ठीक है? और मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ? ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सैड भी कर देती है, और लोग ऐसे हैं, आई एम सो जेन्युइन, लेकिन पीपल आर नॉट दैट जेन्युइन टू मी. मतलब कि मैं अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए होती है, तो मैं हमेशा वहाँ पे होता हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी की हेल्प चाहिए तो कोई मेरे लिए नहीं आता, और मैं हमेशा टेक्स्ट करता हूँ या करती हूँ सबको पहले. मैं किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ. मुझसे कोई मतलब कि कोई मुझसे उस तरह मुझे वैल्यू नहीं करता, मुझे और मेरी दोस्ती को द वे मैं वैल्यू करता हूँ या करती हूँ उनकी दोस्ती को. तो इसमें अब बहुत से बीच में स्टेजेस और लेयर्स आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स एग्जिस्ट.
आई एम पर्सनली इन माई लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप एरा। मुझे कभी-कभी कुछ दोस्तों के टेक्स्ट आ जाते हैं, मैं उनको 10 दिन बाद भी रिप्लाई करती हूँ, कभी-कभी मैं रिप्लाई करना भूल जाती हूँ। मैं कभी-कभी किसी को टेक्स्ट कर देती हूँ और मुझे भी रिप्लाई नहीं आता। तो आई एम जस्ट इन दिस फेज़ कि आई एम लाइक यू आर स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड, इट्स ओके, आई गेट इट। और मुझे लगता है कि राइट नाउ इट्स नॉट इवन लाइक कि मतलब कि आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल forget replying to text क्योंकि कभी-कभी you see a text and you're like okay I'll do later, like we're just lazy. And even though someone might be chronically be online and scrolling, but at the same time they just do not want to like text back or matlab, I don't know, it's okay. It's different when you're in a relationship or in a talking stage with a man, I think. तब obviously if someone is not texting you back on time तो फिर they might not be interested in you क्योंकि that's just a different feeling. लेकिन जब आपकी दोस्ती इतने अरसे तक चल गई हो तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, लाइक मेरी एक दोस्त है जिससे मैं रोज़ बात करती हूँ एंड शी इज़ गोना बी माय पॉडकास्ट गेस्ट वेरी 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 सून, होपफुली इन द नेक्स्ट लाइक एपिसोड। एंड आई लव टॉकिंग टू हर, लेकिन समटाइम्स 2 दिन 3 दिन का भी गैप आ जाता है, आई डोंट रिप्लाई टू हर लाइक मुझे आई मैसेज्ड हर लास्ट संडे एंड शी रिप्लाइड बैक टू मी एंड आई forgot replying back to her and I woke up to her text saying ज़िंदा भी हो? I love her so much. लेकिन anyways I love that, but at the same time, I know she understands. And sometimes I might text her and she will forget. Like it's okay. Like I am not like oh my god, इस बंदे ने अभी तक मेरा reply. Sometimes I am. So I text back. Like कल I परसों I sent this text to my friend and she forgot replying. So I कल texted back and she was like, oh my god, I'm so sorry. I was like, no, I get it, but I really need your help in this. So can you reply back to me? So I think everyone is just so consumed with whatever they are doing, so they don't have like I am personally in my low maintenance friendship era, so I do not care and I am personally not a fast replier, so I don't expect someone to reply me back fastly as well. But again, in relationship it's different, especially if a relationship is in its talking stage. And I'm not an expert on that, so I'll not talk about that. Maybe I am not, but I know how things happen. um Anyways, तो तो सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोग लो मेंटेनेंस दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो आपको वैल्यू नहीं करते, सब वो आपको जो है उस तरह नहीं करते। तो मुझे अब आके मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन मुझे यूज़ कर रहा है और कौन जो है वो मेरा लो मेंटेनेंस दोस्त है, एंड दैट्स द अदर थिंग। सम फ्रेंड्स माइट बी यूजिंग यू एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड डू नॉट गिव इट second thought and leave that friend group and friend circle and move out of it, like उनको भी कोई वो ना दो। अगर मतलब कि मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आप सिर्फ इस वजह से यूज़ होते जाते हो क्योंकि आप वो दोस्ती नहीं खोना चाहते। क्योंकि आप कहते हो कि नहीं मैं इस इंसान से बात करता रहूँ, ये मेरा दोस्त मतलब कि ये मेरा दोस्त रहे, मेरी इससे दोस्ती रहे। इट्स ओके अगर वो मुझे उस तरह ट्रीट नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मैं अपनी बेस्ट देती रहूँगी क्योंकि मुझे ये दोस्ती रखनी है। मुझे और आई डोंट गेट the like idea of keeping a friendship from your end when you know exactly that person is using you and that person would not be there for you the way you are there for that friend. तो ऐसी दोस्ती से you should walk away, and once you realize that it's your fault कि you're staying with that, still staying with that, not complete मतलब कि obviously you are the victim, but why are you doing that to yourself? You cannot, if you know कि the other person is not appreciating you the way you appreciate that person, तो फिर walk out of that friendship. You cannot go and complain to everyone else कि मैं अच्छा इंसान हूँ, वो इंसान मुझे जो है वो उस तरह वैल्यू नहीं कर रहा। क्योंकि give people the energy they give back the energy people give to you। तो आपको लोगों को वैसी ही एनर्जी वही देना चाहिए जो आप रिसीव कर रहे हो। और स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु वाज इन इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वो वुड थिंक कि मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मुझसे कोई क्यों दोस्ती करना चाहेगा, मुझे कोई अपने कुछ बताना नहीं चाहता, मैं इतनी मतलब कि आई डोंट ब्रिंग एनीथिंग टू अ फ्रेंड ग्रुप और एनीवेयर, और मैं किसी की फर्स्ट मतलब कि कोई मुझे क्यों अपना बेस्ट फ्रेंड मानेगा और क्यों मुझे अपनी कोई फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएगा ये वो। आई वाज़ इन ऑल ऑफ दीज़ इनसिक्योरिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्सेस, तो आई स्टेप्ड बैक
and I would only give my energy to the people who I know are putting that effort for me and to have me as a friend. And that changed my life. क्योंकि right now it's kind of insane, लेकिन um, the way I have three friend circle, which is maybe for some people normal, लेकिन a little too much. क्योंकि I think कि two, वैसे ideally I think one friend circle, people mostly have one friend circle, लेकिन I have three, and all of those three are equally important to me. Then I have a lot of friends that are like outside that. Can you guys hear it? पता नहीं पीछे क्या चल रहा है ऐसा जिसका इतना शोर आ रहा है. Should I wait for it to calm down, or should I just keep saying? Let me see. So basically, I think 2021 or 2022 was the year when I just started feeling appreciated and valued as a friend or a person, where I felt like in university कि okay, there might be people who want to talk to me and to be my friends, like new people m- might find me cool and would want to have me as a friend. And my friend that I already have, my classmates, they really appreciate my and value my presence a, in our group and anywhere I go, and they really want to have me. And I think it's a really good feeling, and it makes you feel really important. And obviously everyone wants to feel valued and appreciated. लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए जो मैंने पहली चीज़ की थी वो यही थी कि I just started observing people कि do this person value me, and then I'll value that person. And it's not like कि आप जो है वो इस तरह मतलब कि मतलब obviously a lot of people would be like कि this is not how it should be. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से रूड हो अगर वो आप मतलब कि जब तक वो आपको ऐसा कुछ दिखाए ना कि आप उनके वैल्यूएबल हो. आई डोंट थिंक यू शुड बी रूड टू पीपल. आई think you should meet and like talk to people nicely and have a smile on your own face and like just be in your best manners. But अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि आपसे बात नहीं करना चाहता, तो leave that person alone and give yourself a favor and let that person like. अब मुझे लगता है कि I'm in a place where I would initiate conversation with people. Like, and at one point, I was like, okay, no one wants to talk to me, so I'll only talk to someone who would who wants to talk to me. तो आई थिंक अगर आप उस स्टेज पे हो या आप ऐसा फील कर रहे हो, तो जस्ट लेट समटाइम्स लेट अदर पीपल पुट दैट एफर्ट. यस, बी नाइस, स्माइल, डोंट गिव like a resting bitch face, like don't do that. um treat people with kindness and greet everyone with a smile. लेकिन उसके बाद अगर कोई कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर रहा, तो आपको भी उस पे कॉन्वर्सेशन में एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लीव, लिटरली. There's a lot of people who just do not like fit in a friend circle. मतलब कि they might, yeah, for me as well, there could be a really cool group and I want to be friends with all those people, लेकिन maybe they're just different and I don't fit in. तो मैं ज़बरदस्ती अपने आप को उस चीज़ में नहीं घुसा सकती. एंड समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट द अदर पर्सन्स फॉल्ट, क्योंकि देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन समवन, आई हैव सीन समवन लाइक रियली, and most of the time it's like opposites and gender people. Okay, they are really like putting in that effort to like have this friendship with me, where they're texting me and asking कि मिलते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं. Like, and I just feel like okay, our energies don't match, our vibes don't match that well. So yes, I want to be a nice kind person, but at the same time maybe I don't want, I मतलब कि I already have a lot of amazing friends, and maybe I don't want that person as a close friend to me. I don't know, obviously you don't choose, like, and sometimes it just there's just a difference between energy. And तो अगर मुझे लग रहा है कि आई डोंट फिट इन अ ग्रुप एंड दे जस्ट डू नॉट वांट मी देयर, और मैं खुद किसी को टेक्स्ट किए जा रही हूँ हर हफ्ते, वो मुझे उस तरह टेक्स्ट बैक नहीं कर रहे, या फिर वो खुद से जो है वो टेक्स्ट नहीं करे, तो आई जस्ट स्टॉप टेक्स्टिंग दैट पर्सन. लाइक, फॉर मी, yes, it hurts and you're like why would that person do that, but at the same time I'm like,
I don't want to devalue myself. Is that even a word, devalue? But I don't want, like, I deserve better. I deserve to be happy. अब बात ये है कि a lot of people are in that situation. वो ऐसे ग्रुप्स में होते हैं जहाँ पे जो ग्रुप है उन्होंने शायद मतलब कि वो शायद उस बंदे से उस तरह क्लोज ना हो, और दे द पर्सन इज नॉट फिटिंग इन, बट द पर्सन wants to be in that group and wants to be friends with them, or he's like मतलब कि he knows या she knows कि she's clearly being used by that group, but at the same time the fear of being alone and not have friends is so scary कि they're just getting used by this group of people. उस केस में I would just say there is literally nothing scary about being alone. Enjoy yourself, और यही बात है, मुझे लगता है कि लोग आपको तब एन्जॉय करेंगे जब आप खुद को एन्जॉय करोगे। अगर आप अपने साथ 5 मिनट अकेले नहीं बैठ सकते, तो कोई आप इंसान आपके साथ आके कैसे बैठ सकता है? मतलब बैठ सकते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बैठ सकते, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि रियली एन्जॉय योरसेल्फ, यू शुड नो, एंड आई वाज़ सेइंग दैट इन माय स्टोरीज़ एज़ वेल कि आई रियली नाउ क्रेव फॉर टाइम अलोन। जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी ना, sometimes I would just be like, okay, I just want to sit alone somewhere, like in a ground, and just have my time and have this peaceful time by myself and not be bothered, and just not like have a lot of people around. तो अगर आपको अकेले बैठने में, अकेले अपने साथ कुछ करने में एक्साइटमेंट नहीं हो रही, तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है। यू शुड नॉट बी स्केयर्ड टू बी अलोन, लाइक जेन्युइनली यू शुड नॉट बी स्केयर्ड। um मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लव योरसेल्फ एंड यू नीड टू सी द थिंग्स, और मुझे लगता है कि a lot of this, like being accepted by people, first of all you need to accept yourself, you need to love yourself, you need to know the things you like and enjoy, and then you have to treat yourself through that. अगर अगले एक हफ्ता मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, आई नो कि दिस इज द मूवी आई एम गोना वॉच दैट मेक्स मी हैप्पी, दिस इज द फूड आई एम गोना ईट दैट मेक्स मी हैप्पी, आई एम गोना गो फॉर अ वॉक, दीज आर द थिंग्स, आई एम गोना रीड अ बुक, these are the things that make me happy, so I am going to do all these things to keep myself occupied and enjoy my time. And I genuinely want to be alone and just have this time and just chill and relax, and it makes me excited to be alone. Like मैं जब ऑफिस से वापस आ रही होती हूँ, तो समटाइम्स आई आस्क माय फ्रेंड हु ड्रॉप्स मी ऑफ usually to drop me off like मेरे घर से थोड़ा सा पहले, and I'm gonna walk my way back home because I really enjoy that experience. I really want to do that. Sometimes I come early in my office and I have like good 40 minutes to be on my own before everyone comes in, and I really enjoy that time. I'm like, okay, let me just have this time and enjoy it and enjoy myself and like just be at peace for a while. It's not like I hate having people around. I love and I am a people's person, but at the same time, I enjoy being alone as well. And I know exactly the things that would make me happy, that makes me excited to be alone and do those things by myself. तो अगर आप इस चीज़ के डर से अपने आप को यूज़ करवा रहे हैं कि मैं अकेला नहीं रह सकता, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अम ऑब्वियसली मुझे लगता है कि फ्रेंड्स होना ज़रूरी है एंड दे मेक यू हैप्पी, लेकिन अब इस पॉइंट पे आके आई डोंट मीट माय फ्रेंड्स एवरी सिंगल डे, आई मीट देम वंस इन अ व्हाइल। ऑल्सो माय फैमिली इज़ लाइक equally entertaining and equally like it's equally fun with them, तो मतलब you still मतलब कि you have your family, it's you're not gonna be alone, और आपके दोस्त होंगे, और आगे जाके मतलब वैसे ही आप साल में 2 बार मिलते हो अपने दोस्तों से, या महीने में 1 बार, ठीक है? तो it's just not that scary. You just have to accept yourself and just not be around people who would not let you in, who would not give you the effort and energy. Like सिर्फ़ इस वज़ह से कि मुझे एक दोस्त चाहिए, तो अपने आप को यूज़ मत कराएँ, क्योंकि वो आपको आप उसके दोस्त हैं, वो आपका दोस्त नहीं है, और उस ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा? एंड आई थिंक कि फॉर मी, मुझे लगता है कि मतलब फॉर मी जब भी मैं अपने साथ ऐसा कुछ करती हूँ ना, व्हेनेवर आई लेट माय सेल्फ बी यूज्ड बाय समवन, आई फील सो बैड फॉर माई सेल्फ कि मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया, जेन्युइनली। तो मुझे लगता है कि यू डिज़र्व बेटर। इतनी मिज़रेबल दोस्ती रखने से बेहतर है कि बंदा जो है वो अकेला रह ले और अकेला एन्जॉय करे। विद टाइम यू विल फाइंड योर पीपल, यू विल फाइंड योर फ्रेंड्स। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि it is hard, especially after graduating, it is hard to like find new people, but you find people.
आपका बन जाते हैं दोस्त अगर आप और स्पेशली मतलब कि जैसे ऑन देयर सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आई एम लिटरली आई जस्ट जॉइंड दिस लाइक ग्रुप जिसमें इट्स लाइक अ साइलेंट ग्रुप silent book club or there's just this like another channel made for it where everyone just talk and you can talk मतलब कि you can just join social like groups like that and talk to people and फिर they like do monthly meetups तो आप उन पे मिल भी सकते हो and you just can find friends if you're active on Twitter so you can like find I have a lot of online friends and I find so much joy um, in those people तो आई थिंक कि आपको दोस्त कहीं भी मिल जाते हैं सबसे पहले यू जस्ट हैव टू लाइक स्टार्ट एंजॉयिंग और जैसे आई जॉइन द साइलेंट बुक क्लब इट वाज बिकॉज आई एंजॉय रीडिंग तो दोस्ती कभी कभी जो है वो शेयर्ड इंटरेस्ट से बनती है और इस वजह से पहले इंटरेस्ट होना ऐसे ज़रूरी हैं ताकि आपको उस जगहों पे दोस्त मिलें और आप में चीज़ें कॉमन हो तो फिर आप आगे वो वो चीज़ आगे एक्सीड करे और आप एक उस चीज़ से बाहर एक दोस्ती बना सकें। आई होप दैट मेक्स सेंस। But this podcast is not about how to develop friendships. Obviously, it's about giving back the energy you get. So, for me, when I remember ke यूनिवर्सिटी में स्पेशली माय फाइनल ईयर आई वुड जस्ट सी कि अगला बंदा मुझसे बात करना चाहता है कि नहीं और इफ और a lot of times the other person do not want to talk तो I would just not talk to that person और ये यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि I would not like Instagram पे I was like in this much deep inferiority complex कि I was like कि I am only I'm I'm not gonna say मतलब कि now I don't care obviously but उस time I was like कि I am not gonna send anyone. This is so weird. But it happens and I think it was a nice thing and I am मतलब कि it helped me and I just wanted to feel appreciated and valued, whatever, and just important. So I would not send anyone a follow request unless they would not send me a follow request first. Like मुझे कोई follow request मतलब कि it's not like I was just being rude and I was like oh my god मुझे attention दो attention दो attention दो but I was just not putting that much मतलब कि अगर मुझ especially अगर मुझे लगता था कि कोई बहुत मतलब कि आपको पता भी लग जाता है लाइक अगर कोई बहुत कूल है या फिर मतलब कि समवन जस्ट लुक्स वेरी कूल एंड व्हाटएवर आई वुड पर्सनली लेट दैट मतलब कि person or we are getting to interact I would let that person like put in a little bit effort to see कि does that person want to talk to me मैं annoying तो नहीं बन रही ज़्यादा बात करते हुए इस वजह से I would not send follow request myself to someone क्योंकि I just do not want it to look annoying. I was like no मुझे अगला बंदा please मतलब कि I just want to feel appreciated. Please send me a follow request first. I want to know it's very important for me to know okay you want to be my friend and it's not because you feel bad for me और मुझसे बस तरस खा के मतलब कि courtesy में कोई मुझसे जो है वो मुझसे बात कर रहा है या फिर मेरा म्यूचुअल है इंस्टाग्राम पे लाइक नो पिटी पार्टी नथिंग आई वांट टू नो कि यू जेन्युइनली लाइक वांट टू बी माय इंस्टाग्राम फ्रेंड और वांट टू टॉक टू मी और इट वर्कड ओके और मुझे लगता है कि इट वाज आल्सो लाइक माय कूल एरा इन यूनिवर्सिटी तो मतलब मतलब तो उस टाइम आई जस्ट स्टार्टेड जस्ट फीलिंग लाइक वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड आई वाज लाइक ओके पीपल वांट टू बी माय फ्रेंड और मुझे लगता है कि once I know कि this person wants to be my friend तो फिर I am like okay like we are best friends basically now तो जो मुझ पे जिस तरह की एनर्जी मतलब कि वो the way the other person like puts like effort on me I just give that effort back and if I know कि the other person is doing their best and just मतलब कि genuinely लाइक वैल्यू मी तो फिर मैं जितना अपनी मतलब कि उस तरह हो सक मतलब कि एफर्ट में हो सकता है मैं सारी एफर्ट डाल देती हूँ लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू मी अब फिर मतलब कि ये नहीं है कि मैं फिर पूरी ज़िंदगी ऐसा करती रहती हूँ कि नहीं मुझे पहले मैसेज आएगा फिर ही मैं बात करूँगी, यही होगा। इट्स जस्ट फॉर लाइक फर्स्ट फ्यू स्टेजेस बट व्हेन आई नो कि ओके दिस पर्सन एक्चुअली अप्रिशिएट्स मी तो आई अप्रिशिएट दैट पर्सन जस्ट मोर एंड बियॉन्ड। तो इस और फिर ओके अब ये बहुत होता है और ये इट हैपेंस अ लॉट मेरे साथ अब नहीं हुआ क्योंकि आई जस्ट डू नॉट केयर नाउ लेकिन आई सी अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग बॉदर्ड बाय इट सो आई एम गोना से इट
समटाइम्स आपका किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है और सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन एकदम से समथिंग हैपेंस टू दैट पर्सन एंड दे स्टॉप टॉकिंग टू यू एंड स्टॉप गिविंग द एनर्जी दे वुड गिव यू अ वीक बैक, मे बी अ डे बैक। एंड उस केस में यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, या ऐसा क्या हो गया कि ये बंदा अब मुझसे इस तरह बात कर रहा है, या फिर मुझसे बात ही नहीं कर रहा, और अब मैं क्या करूं, और यू गेट अ लिटिल मिजरेबल एंड इट्स सैड। बट आई अगेन से, अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपको भी उस इंसान से बात करने की नहीं ज़रूरत। हाँ, अगर आपकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो बहुत सालों की दोस्ती थी, or you think it's something serious, some drama happened, so you should confront that person and ask that person कि what happened. Again, sometimes it's not that serious, तो फिर you're just like, and you don't understand कि what happened, like it depends on person to person. तो फिर just like ignore it. Like for me, if someone would just stop talking to me randomly, I'll stop talking to that person too, unless फिर जब तक उस बंदे को समझ नहीं आता एंड दे आर लाइक बैक टू देयर ओन सेल्फ, तो फिर आई लास्ट के ओके बाय द वे व्हाट हैपेंड टू यू, लाइक व्हाट, क्योंकि नाउ आई नो कि ओके आई डोंट इंटरैक्ट टू दैट अ पर्सन अ लॉट, और किसी को क्या हो सकता है, मतलब जो भी है। So I remember one of my friends was going through this thing where one of their friend would just change. So I would just tell them कि give back the energy you get. अगर एक इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आप अच्छे से बात करो। अगर एक इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो उस इंसान को इग्नोर करो। I would not say कि अगर कोई इंसान मतलब कि अच्छे से बात नहीं, मतलब कि if they are ignoring you, just ignore them. Like obviously it takes you a while to understand कि that person have like attitude changed, लेकिन once you realize that, just like take your distance as well. अगर वो आपको cold shoulder दिखा रहे हैं, आप भी उनको आप मतलब कि you do not need to be warm to them, like आप भी ignore करो जब तक उनको वो चीज़ खुद realize ना हो जाए, क्योंकि it's very important कि आप वो चीज़ pick कर लो जल्दी से, क्योंकि वही बात है कि वरना आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है? तो कोई इंसान आपको क्यों वैल्यू करेगा जब आप अपने आप को नहीं कर रहे? मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू लाइक दीज़ फेजेज़ जहाँ पे उनका किसी से बात करने का नहीं दिल चाहता, लेकिन जो उनका फ्रेंड है हू इज़ लाइक नॉट गेटिंग ट्रीटेड दैट वेल, और थोड़ा-सा शिटी ट्रीट भी हो रहा है, दे विल स्टिल बी दैट फ्रेंड एंड दे विल बी लाइक, "नो, आई एम देयर फॉर यू" एंड दे विल टॉक नाइसली। अगला बंदा जितनी मर्ज़ी बदतमीज़ी कर रहा हो, आप फिर भी यू आर लाइक कि नहीं, नहीं, इट्स ओके, इट्स माय फ्रेंड। नहीं, मतलब अपने साथ ऐसा मत करो। अगर कोई आपको शिट ट्रीट कर रहा है, यू डोंट डिज़र्व दैट एंड यू नो यू डोंट डिज़र्व दैट, इफ यू थिंक यू डिज़र्व दैट, तो वो एक अलग बात है, मतलब कि कोई ड्रामा फिर उसके पीछे हुआ है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है एंड यू डोंट डिज़र्व इट, तो फिर आपको भी थोड़ा-सा उस बंदे को कोल्ड शोल्डर दिखा देना चाहिए जब तक वो इंसान ठीक नहीं हो जाता। अगर वो इंसान ठीक नहीं होता, इट्स ओके। येस, फॉर 2 डेज़ यू विल बी लाइक, "ओह माय गॉड, वी हैड दिस लाइक गुड बॉन्ड, नाउ दिस पर्सन डोंट टॉक टू मी।" थर्ड डे इट वुड बी फाइन। One random day it's you just you will be fine, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है मैं ये 10वीं बार बात कह रही हूँ, आपको भी उनको वो वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है मतलब कि just like if someone, like even my friends, like my really good friends in schools and university, एक मतलब कि we would be fine and the next day my friend would come and they would just not be in a good mood and they would not talk to me, and that would like make me feel shit कि why they're like that now. But I learned कि if they are in that mood and they do not want to share, obviously आप शुरू में पहले कुछ अरसा you put that effort, you are in the same mood, लेकिन you are seeing that that person is not responding you the same way, so just like walk out, genuine, just walk out, let the other person take their time and come back to you, and then you can ask them okay, okay, what happened, why were you like that, I did not felt good, and whatever, मतलब कि if they come back to their old self and they can tell कि okay, I was having a shitty day or whatever, लेकिन अगर आपका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो you don't owe another मतलब कि a person anything, especially if the friendship is not that deep और इतनी गहरी दोस्ती नहीं है। कभी-कभी your friend is going through a phase and you want to be there for them, लेकिन हर इंसान पे डिपेंड करता है। Some people need people when they're in the phase and some people don't. Sometimes
आप अगले इंसान को मतलब कि अगले इंसान आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, आप भी उनको इग्नोर करना शुरू हो जाओगे और वो दोस्ती वहीं खत्म हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि दैट फ्रेंडशिप वाज़ नॉट मेंट टू बी एंड इट्स फाइन। मुझे लगता है कि फॉर मी मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकती एंड आई हेट कन्फ्रंटिंग पीपल। आई डोंट थिंक कि दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन फॉर मी दैट लाइक स्लोली जस्ट डिस्टेंसिंग एंड ग्रोइंग अपार्ट इज़ लाइक बेटर। तो अगर कोई मुझसे बात करना कम कर देगा तो मैं भी उससे बात करना कम कर दूँगी। अगर उस इंसान को मेरी वैल्यू होगी वो बाद में मुझसे फिर से बात कर लेगा, अगर उनको नहीं होगी तो बाय। ये बात नहीं है कि आई थिंक आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, लेकिन इफ यू गाइस हैव टॉक्ड टू मी यू वुड नो कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं खुद से कोई एफर्ट नहीं पुट करती दोस्ती में। मैं करती हूँ लेकिन आई डोंट कॉम्प्रोमाइज़ माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू लाइक जस्ट अप्रिशिएट मतलब कि जस्ट बी देयर फॉर द अदर पर्सन। बट the person who appreciate me, I appreciate that person just more. Or you can tell when someone is just genuinely there for you and wants to appreciate you, or as compared to someone who is just replying to you because you messaged. Or I think it's okay. They're मतलब कि sometimes it's just not it's not like the other person's fault as well. क्योंकि again I said कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि I have seen like a guy who's trying to be my friend or who's trying to get in our like group, and I'm just not that we are just not that close to that guy, and we do not want that person in our space. हमारी अपनी इतनी गहरी दोस्ती है। तो उस सिलसिले में डिस्टेंस करने के लिए मैं खुद भी मतलब कि आई एम लाइक कि ओके आई कैन नॉट बी बेस्टीज़ विद यू, आई एम सो सॉरी मैन। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपको ऐसे दिखा रहा है तो जस्ट टेक अ हिंट एंड जस्ट लाइक मूव आउट, डोंट लाइक। और कभी-कभी ऐसा होता है कि सम फ्रेंडशिप्स आर मेंट टू बी जस्ट लाइक हैंग आउट फ्रेंडशिप्स। मतलब मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आई हैंग आउट, वी हैव अ गुड टाइम, इट्स सो फन, बट um I am not texting them every single day or every single week or whenever, और या फिर मेरा उनसे कोई इस तरह का इमोशनल कनेक्शन नहीं है एंड दैट्स फाइन। आई थिंक कि सबसे पहले बड़ी बात ये है कि यू शुड बी एबल टू रीड द रूम, यू शुड बी एबल टू नो कि अच्छा इनमें से कौन से दोस्त है जो मेरा हैंग आउट दोस्त है जिसके साथ मैंने हैंग आउट करना है, आई विल हैव फन, बट इट्स ओके टू नॉट हैव एनी इमोशनल लाइक कनेक्शन विद देम, एंड इट्स ओके कि अगर हमारी 3-4 महीने बात नहीं हुई और उसके बाद हम मिले हैं, लाइक इट्स कंप्लीटली फाइन, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, इट्स ओके। और कौन से दोस्त मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कौन से दोस्त के साथ सिर्फ़ मेरी हाय हेलो है और किस दोस्त के साथ नहीं है, मतलब किस किस इंसान के साथ दोस्ती भी नहीं है। तो यू शुड बी एबल टू रीड द रूम। आई थिंक कि आपको देखना चाहिए कि कौन आपसे किस तरह आपको ट्रीट कर रहा है, और is the other person showing up for you, are they inviting you to things। अब invite वगैरह करने के लिए I made a whole podcast about FOMO, feeling of missing out, and I also made a whole podcast about inferiority complex। I also made a podcast about friendships and like how to deal with friendships, and उसमें भी मैंने जो है वो पूरी feeling of missing out या फिर जो है वो उस सब की बात की थी, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई invite नहीं कर रहा और जो है वो आपको बुरा लग रहा है उस चीज़ का, तो जस्ट हाउ टू डील विद ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको जानकर अवॉइड कर रहा है, मतलब कि आपके मुँह पे सही है, लेकिन वो उसने फ्रेंड मतलब कि नहीं पुट कर एफर्ट, तो जस्ट लीव इट लाइक जेन्युइनली। आपको किसी ने अवार्ड नहीं देना इतना करने का, उनके लिए करो जो एक्चुअली आपकी वैल्यू करते हैं, और देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट वांट टू बी योर फ्रेंड। जैसे आप यूनिवर्सिटी में भी होगे आपको, और ऑल्सो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस जिसमें यू हैव टू बी द बिगर पर्सन। जैसे मैं बात करी थी कि आई वाज़ जस्ट इन दैट स्टेज वेयर आई नीड टू बी फर्स्ट बी श्योर कि द अदर पर्सन वांट्स टू टॉक टू मी, लेकिन नाउ आई एम इन द स्टेज वेयर I feel like मतलब कि secure about my friendships and myself, and the fact I know कि what I bring on the table as a friend and why people want to be my friends। और obviously मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा part ये है कि university ended, we moved out, लेकिन there's a lot of people I'm still friends with who would want me on their get together। So it just feels nice, लेकिन now I'm in that stage where I know कि okay people think कि Rabia is cool. We want to have her, and the thing I bring to the table as a friend, and the conversation I have with people. So now that I am secure of my friend and I have confidence, so now I put the effort too. Especially if the person in front of me is a junior or is younger than me,
तो मुझे लगता है कि आई टेक जस्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, आई जस्ट मेक मोर एफर्ट in making that person feel like good and warm and having a मतलब कि bringing that warmth and having a nice conversation with that person. अगर मुझे पता है कि अगला इंसान is feeling intimidated by my presence, तो it's my responsibility कि वो सोचें कि oh my god इससे मैं कैसे बात करूँ ये वो। वैसे ऐसा कोई सोचता नहीं है वो जो पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपके स्पेशली जो आपके यूनिवर्सिटी में आपके जूनियर्स होते हैं, या फिर जैसे आप ऑफिस में हो एंड देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक हेल्पर्स जो स्पॉट बॉय हैं और वो सब कुछ हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे जाके अच्छे से बात करो। मे बी वो आपसे डरते हो कि पता नहीं ये बात करें मुझसे ना करें, तो मुझे लगता है कि जहाँ आपको लगे कि यू आर द पर्सन हु इज लाइक at like the bigger, not the bigger लेकिन on the area where the other person is scared कि पता नहीं ये मुझसे बात करें या ना करें, so you should be the one who should be like welcoming, and you should talk to the person warmly and make them feel invited and appreciated and value. So I do that now when I know कि whenever I feel like I am in the position कि I need to talk to that other person, like I need to um make them feel these things क्योंकि वो शायद मुझसे डर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए। तो येस, समटाइम्स यू आर इन दैट पोज़ीशन, समटाइम्स यू आर नॉट। तो जब आपको स्पेशली व्हेनेवर यू आर फीलिंग इंटिमिडेटेड बाय समवन, एंड इट्स वेरी नेचुरल कि यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन, लेकिन देयर जस्ट ऑरा इज़ इंटिमिडेटिंग एंड यू डोंट नो के if they think they find you as a good friend, मतलब they want you to be your friend or they find you borderline annoying, इसलिए let them put that effort and then retaliate that effort they are giving into you. बंदे पे बंदे से बंदे पे डिपेंड करता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, आई होप यू गेट इट। स्पेशली मतलब आप यूनिवर्सिटी में तो सीनियर्स दे आर सो कूल, यू नो क्लब्स के प्रेसिडेंट, मतलब जस्ट द कूल पीपल एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड मैं इनसे कैसे बात करूं, लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू बी देयर फ्रेंड, जस्ट लाइक बी अ नाइस पर्सन, अच्छे से ग्रीट देम नाइसली, बट सी कि वो आपको जो है वो उससे आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं, आपकी बात सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं सुनना चाहते इट्स ओके, जस्ट डोंट लाइक डोंट टेक एवरीथिंग ऑन हार्ट, और मतलब यू विल बी फाइन, like it would be fine, you'll make friends, you'll find the people who appreciate you. Obviously you have your parents and your siblings who appreciate you so much and want the best out of you, तो उनको भी appreciate करें, अपने आप को खुद appreciate करें। जब तक आप अपने आप को खुद appreciate, अपने आप को खुद value नहीं करेंगे, तब तक कोई अगला इंसान आपको कैसे value करेगा, कैसे appreciate करेगा। डोंट बी afraid to be alone, and जहाँ पे आपको लगे कि the other person is intimidating, तो let them speak, let them be like invite you in their like space, um और फिर आपको अगर जब ये लगना शुरू हो जाए कि नहीं यार अगला बंदा जेन्युइनली चाहता है कि जो है मैं उसका दोस्त बनूं और दे आर अप्रिशिएटिंग माय प्रेजेंस और वो मेरे लिए ये एफर्ट डाल रहे हैं, मतलब वो सब कुछ हो रहा है, तो आप भी वो फिर एफर्ट डालो, मतलब कि फिर इतना कूल बनने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगला बंदा फिर डिस्टेंस कर लेगा आपसे, कहेगा कि मैं ही किए जा रहा हूँ, अगला बंदा ये क्यों नहीं कोई एफर्ट डाल रहे। तो आपको बस मतलब कि वो हिंट मिल जाती है, जब आपको किसी से वो हिंट मिल रही है और जो है आपको लग रहा है कि आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात जो है वो अच्छी, इट्स बीइंग वेल रिसीव्ड, कोई आपके ओपिनियन माँगना मतलब कि माँग रहा है या फिर आपकी एडवाइस चाह रहा है, एक ही बात हो गई, या फिर चाहता है कि आप उनकी बात सुनें। तो अगर आपको कोई मतलब कि उस तरह अपने उस स्पेस में ला रहा है, तो आप भी उस स्पेस में जाएँ और अगले इंसान को अपनी स्पेस में लाएँ और जस्ट पुट ऑल द एफर्ट एंड गिव दैट पर्सन ऑल द लव एंड अप्रिशिएट एंड वैल्यू दैट पर्सन। अगर कोई इंसान आपको जो है वो मुँह नहीं लगा रहा, आपको भी उस इंसान को मुँह लगाने की नहीं ज़रूरत, मतलब कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करें बस, ठीक है? अगर कोई इग्नोर कर रहे हैं, उसको भी आप आगे से इग्नोर करें। और अगर आप इस पोज़ीशन में हैं कि आप कोई भी जूनियर इंसान आपसे दे आर इंटिमिडेटेड बाय यू, तो इट्स ऑल्सो ऑन यू कि आप अगले बंदे को अच्छा फ़ील कराएँ और उनसे वार्मली बात करें और let them in your space if you want to, and if your vibes don't match or whatever it is, और आप नहीं चाहते कि वो and it's okay, मतलब कि कभी-कभी कुछ लोग आपसे शायद दोस्ती करना चाहें, और जैसे आप कभी-कभी किसी इंसान से दोस्ती करना चाहोगे जो जिसको लगेगा कि ये मतलब कि वी आर डिफरेंट एंड दे वुड नॉट मतलब कि मे बी जस्ट गिव दैट एफर्ट बैक, एंड यू शुड लाइक रीड द रूम एंड लीव। इसी तरह
कभी-कभी आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। लाइक यू वुड नो कि यू हैव दिस ग्रुप एंड समटाइम्स समवन ट्राइज़ टू फिट इन बट दे यू हैव जस्ट योर ओन लाइक होल लाइक वाइब एंड एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और वो दैट पर्सन इज़ लाइक डिफरेंट। तो जस्ट लाइक आहिस्ता-आहिस्ता करके आप कोशिश करते हो कि आप डिस्टेंस कर लो, डिस्टेंस कर लो। जस्ट बी नाइस कि अगले बंदे को बहुत ही बुरा फ़ील नहीं कराना, लेकिन जस्ट वही बात है कि अदर पर्सन शुड आल्सो नो टू रीड द रूम, यू शुड रीड द रूम। और वही बात है कि हर दोस्ती जो है वो उस लेवल तक क्लोज़ और इमोशनल नहीं जा सकती। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं, हैंग आउट फ्रेंड्स होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं लिटरली मीटअप पे मिलती हूँ, क्योंकि जिन्होंने मीटअप किया होता है, मतलब कि अगर मेरी किसी दोस्त ने मीटअप किया है तो उसने मतलब कि अपने दोस्तों को भी बुलाया है और मुझे भी बुलाया है। तो आई माइट नॉट बी डायरेक्टली फ्रेंड्स टू देयर फ्रेंड्स बट वी वुड हैव जस्ट अ नाइस हाय हेलो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही रहेगी। मे वी कैन जस्ट मीट ऑन हैंगआउट्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड देन जस्ट लाइक बी लाइक बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो यस, तो नो हु इज़ योर इमोशनल फ्रेंड, हु इज़ योर हैंगआउट फ्रेंड, हु इज़ योर लो मेंटेनेंस फ्रेंड एंड हु इज़ नॉट। तो मतलब कि बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट। और हर किसी से आपकी उस लेवल की दोस्ती नहीं हो सकती। बी एबल टू ओपन टू ऑल दीज थिंग्स, और जो है बी एबल टू जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि समवन डजंट वैल्यू यू एंड डोंट गिव देम द एफर्ट बैक। मुझे लगता है कि द थिंग विद दैट इज़ दैट कि लोग ना बहुत जल्दी बिटर हो जाते हैं कि मेरे साथ इस इंसान ने ये नहीं किया, मतलब मैंने ये किया, इसने ये नहीं किया, मतलब कि ये नहीं किया, इसने मुझे इस पे इनवाइट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इट्स ओके अगर मतलब कि इट्स ओके, जस्ट लाइक टेक योर डिस्टेंस एज़ वेल। जब आपको लगेगा, जब आपको लगेगा कि वो एफर्ट नहीं डाल रहे, आप भी एफर्ट नहीं डालोगे, आराम से मतलब कि अच्छे तरीके से यू विल ग्रो अपार्ट, इट विल बी फाइन। या तो आई थिंक ये you should learn from all of this and just be a good person. So, anyways, that's it for this podcast. I hope all of this made sense. I hope it helped you. Um, See you next week. मैं कहने लगी थी कुछ और फिर मैंने कहा नहीं, आई डोंट हैव, मतलब कि आई वाज अबाउट टू से सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब व्हाट? मे बी लाइक फॉलो मी ऑन एप्पल पॉडकास्ट और व्हाटएवर पॉडकास्ट platform you're listening to, or leave a review. I think there's like a 5-star rating. तो लीव अ नाइस लिटिल रेटिंग फॉर मी। उससे कुछ होगा नहीं, वो जस्ट मेक मी हैप्पी। मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक एंड यू गाइस विल लिसन टू मी नेक्स्ट वीक, और इसके बाद कोई भी गैप नहीं आएगा, होपफुली। होपफुली। बाय।